Good morning, student. Now, today we will discuss the last part of this chapter, the third part. Until now, we have covered mainly two things. Number one, the need of power sharing. Need of power sharing. It is very important question. Why it is desirable? क्यों इसकी ज़रूरत है? This we have proved with two examples. Number one, the case study of Belgium, and second one is case study of Sri Lanka. By these two case studies, we have proved that power sharing is needed. It is desirable because power sharing solves many problems. It ensures equality in the society, and it is the very spirit of democracy. It is called the soul of democracy. Now the next topic is the methods of power sharing. Now we have decided and we have convinced with the idea that power sharing is needed. It is need of the word. Now by which methods we can do power sharing. तो पहला पार्ट हमने देख लिया कि पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी आवश्यक है और उसके कई फ़ायदे हैं. फ़ायदे के अलावा वो लोकतंत्र की आत्मा उसको कहते हैं. लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत समानता का है वो सत्ता की साझेदारी से ही संभव है. अब आप इस स्लाइड में देखिए कि सत्ता की जो साझेदारी है, तो मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 parts. First part is power sharing between different organs of government. Okay, different organs of government. Now what do you mean by, I think you understand the organs of government. In class 6, 7, 8 and 9 you have read about the organs of government, mainly in every country, and because we are studying this chapter in reference of India, then you can see these are the main organs of government: the legislature, the executive and the judiciary. legislature को बोलते हैं विधायिका, executive को कहा जाता है कार्यपालिका, एंड तीसरा जो हमारा है जुडिशरी को कहा जाता है न्यायपालिका. तो आप देखेंगे जो हमारा पहला सत्ता की साझेदारी हो रही है वो सरकार के इन 3 अंगों में हो रही है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इट इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. व्हाई इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, वी विल डिस्कस इन coming slides. The second method of power sharing is power sharing among the different levels of the government. Okay, the second part is different labels को हम कहते हैं सरकार के अलग अलग स्तर. ठीक है, पहले वाले को हमने कहा, इसको हमने कहा सरकार के अलग अलग अंग, और इसको हम कह रहे हैं सरकार के अलग अलग स्तर. तो हमारी कंट्री में यू कैन सी दैट देयर आर बेसिकली 3 levels of government. In India we have federal government. Federal government has more than one level of government, and in India we are following 3 levels of government. One is central government. Okay, first one is central government. Central government को हम बोलते हैं केंद्र सरकार. Second one is स्टेट गवर्नमेंट हम बोल रहे हैं राज्य सरकार. और थर्ड जो हमारे यहाँ है उसको हम कहते हैं स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट. इसका गांव में, शहर में अलग अलग नाम है. तो आपने देखा कि हमारे यहाँ सरकार के 3 स्तर हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार. स्थानीय सरकार का प्रारूप अलग अलग है. नगर और शहर के हिसाब से इसको हम अलग अलग स्टडी करते हैं. छोटी क्लासेस में आपने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है. ओके, अब पावर शेयरिंग का जो थर्ड तरीका होता है वो होता है पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप. किसी भी कंट्री में जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप होते हैं वो सत्ता की साझेदारी किस तरह से कर रहे हैं, ये थर्ड वाला पॉइंट होता है. सोशल ग्रुप का मतलब सामाजिक समूह.
और फिर फोर्थ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड है पावर शेयरिंग का, इट इज़ बाय द पॉलिटिकल पार्टीज और द प्रेशर ग्रुप्स. सो दीज आर द फोर मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग. Power sharing between different organs, power sharing between or the among different levels, power sharing among different social groups, and power sharing among the political parties. Okay, again it is shown here, it is a repetition, different organs, different levels, social groups, and the political party, pressure groups, and the moment. This you can write in types of power sharing or methods of power sharing both. Now उसको ही अब हम थोड़ा सा अलग ढंग से देख रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट में आपको भी बता दिया था कि लेजिस्लेचर है विधायिका, एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका, एंड जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका. तो इन इंडिया पावर इज शेयर्ड बाय दीज थ्री. ओके, power is shared by legislature, executive, and judiciary. Now student, this power sharing is called the power sharing among legislature, executive, and judiciary is also known as horizontal power sharing. Horizontal means it is on सेम लाइन, इट इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, मैथ्स में आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट पता होगा. तो इसका क्या मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट इंडिया में हैं, दे हैव इक्वल राइट्स. वो लगभग बराबर उनको अधिकार मिले हुए हैं. दे आर एंजॉइंग ऑलमोस्ट सिमिलर राइट्स. इट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इसको आप अभी डिटेल में देखिए. ये फिर से दो. अब सेकंड जो हमारा शेयरिंग हो रहा है वो हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं वर्टिकल शेयरिंग. सबसे पहले जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट में सबसे टॉप पे जो है वो यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार. तो आपने देखा यहाँ पे ऐसे वर्टिकली जो है वो पावर की शेयरिंग हो रही है. इसको लंबवत सत्ता की साझेदारी कहा जाता है. तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट टॉप पर है वो मैक्सिमम राइट्स को एंजॉय कर रही है. फिर जो उसके बाद है उसके राइट्स कंपैरेटिवली कम हो जा रहे हैं, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट कभी उसके राइट्स को सीज भी कर सकती है. सेम जो लोअर लेवल पे गवर्नमेंट है उसके राइट्स कंपैरेटिवली और कम हो जा रहे हैं. उसके राइट का जो स्कोप है वो केवल लोकल एरिया है. तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो पूरे नेशन के लिए कुछ डिसीजंस को नहीं ले सकती. वो केवल अपने ही डिसीजंस को ले पाती है. उसको इंटरनेशनल या अलग अलग स्टेट से रिगार्डिंग राइट्स नहीं हैं. तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर की जो शेयरिंग हुई है वो इक्वल नहीं हो रही है. इसमें आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पावर के कुछ और भी इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं. तो ये आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा. मेन आपको पॉइंट बता दिया, हॉरिजॉन्टल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में है. वर्टिकल डिवीजन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोअर गवर्नमेंट के बीच में है. ठीक है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल है इसको ऑर्गन के बीच का शेयरिंग कहते हैं. जो वर्टिकल है इसको हम डिफरेंट लेवल्स के बीच का कहते हैं. फिर आप देखेंगे कि ये जो हैं हर एक कंट्री में इसका कुछ रूल अलग है कि उनका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. हमने इंडिया के रेफरेंस में आपको बताया कि वर्टिकल डिवीजन में टॉप लेवल ज़्यादा राइट्स को एंजॉय कर रहा है, उसके पास ज़्यादा पावर है, और जैसे जैसे नीचे को जा रही हैं पावर्स फिल्टर होती चली जा रही हैं. किसी दूसरी कंट्री का ये सिस्टम इससे अलग भी हो सकता है. इट इज़ नॉट यूनिवर्सल. Okay, now this is about this chapter. So the chapter includes basically three concepts. One is its meaning. Second, okay, a quick revision हमारा हो जाएगा. First is meaning. Second, regions. And third, मेथड्स. ओके, तो ये इसके
की टॉपिक हैं, आपको ये की टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पर्सनली इसको डाउट को क्लियर कर लीजिए। देयर आर इन दिस स्लाइड कुछ बहुत ही शॉर्ट में चैप्टर को रिवाइज़ किया गया है। सम मेमोरेबल फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हैं जो आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इन रीजन्स वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये आप ज़रूर 5 मार्कर के हिसाब से तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में इसको आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। दिस चैप्टर कैरीज वेरी हाई वेटेज इन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। थैंक यू। आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, इट्स वेलकम। थैंक यू।